Hello, good morning, everyone. Sorry for the delay. Good morning, ma'am. Good morning, Anna. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. So, everyone, Good morning, ma'am. today we will discuss about the third band descriptor. Which is the third band descriptor? What is the name of it? Lexical resources. That's great. It's lexical resource. Now, what is lexical resource? Any idea? In Ma'am, which we without learn how to changing use the Terminologies. correct use we of the should words give. and vocabulary also. Words and vocabulary means what, Anam? मीन्स द यूज ऑफ द जो वोकेबलरी है हमारे पास और देन उसको यूज कैसे करते हैं हम Collocations we use, ma'am. Yes, collocations. That means this is where the students they actually jump from band 6 to 7 plus. तो आज के सेशन का गोल है that you will learn about the lexical resource, not the fancy dictionary words. Precise words, variety of words, no repetition. And your tone while writing the essay should be academically natural. Okay? So we will upgrade some of the basic words. बिफोर दैट किसी को कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो जल्दी से बताओ यस एनीवन नो नाउ लेक्सिकल रिसोर्स इज अबाउट vocabulary. Now if I say that you have to write a word for big, Enormous. yes, ह्यूज sorry, Large, ह्यूज कवर से yes, yes, Enormous. yes, major, mhm, yes, Significant. significant also, correct, and massive, massive, yes. But how do you know that you're using it in the right context or not? Lexical resource mainly include your vocabulary plus the vocabulary skills. Remember this thing. How well you use your words in your speaking, in your writing. आपका जो lexical resource है वो आपका speaking में भी आता है, आपकी writing में भी आता है. रिमेंबर जब हमने स्पीकिंग मॉड्यूल करा था सो यहाँ पर जब हम राइटिंग करेंगे नो डाउट स्पीकिंग में आप स्पेलिंग क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता बट राइटिंग में आपको अपनी स्पेलिंग पे फोकस करना पड़ेगा इफ यू आर गोइंग टू राइट अ रॉन्ग स्पेलिंग इट्स अ डिसएडवांटेज फॉर यू अब आप वो वोकैब बिग के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं बट आर यू यूजिंग इट एक्यूरेटली और नॉट सो यहां सबसे पहली चीज जो मैटर करेगी वो क्या है एक्यूरेसी ऑफ द वर्ड चॉइस जो भी आप यूज कर रहे हो इट शुड बी इन द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट प्लस आर यू एबल टू यूज लेस कॉमन वर्ड्स क्या आप एग्जामिनर चेक करेगा आपकी रेंज ऑफ वोकैबुलरी को नो डाउट क्योंकि लेक्सिकल रिसोर्स होता क्या इट्स ऑल अबाउट द वोकैबुलरी बट आपने जो वो वोकैबुलरी यूज करी है आपने जो वो वर्ड यूज करा है अभी आपने मुझे बिग के बहुत सारे सिनोनिम्स बताए बट जो आपका स्टेटमेंट है उसमें आपने वो वर्ड राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज करा है या नहीं प्लस डू यू हैव द एबिलिटी टू यूज लेस कॉमन वर्ड्स इन अ नेचुरल वे नेक्स्ट थिंग इज योर स्पेलिंग एग्जामिनर आपकी स्पेलिंग को भी चेक करता है So those who are not good at spelling, please practice करना start करो. Then comes your collocations. Collocations हम कर चुके हैं speaking में. Remember what is collocations? वो words जो साथ साथ चलते हैं. That naturally go together. कौन से होते हैं collocated words? कोई भी example दे दो. As well as Don't make a noise. fast pace. Yes. Now I'm going to give you a statement. decrease, आपको ma'am. ट्राई करना है कि आप सिंपल वोकैबुलरी एक इसमें कुछ अच्छा सा वोकैब ऐड करो जहां पे आप कर सकते हो बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज देर आर रेपिटेटिव वर्ड्स गुड जॉब्स
good salary, right? Simple है ना बिल्कुल. People want good jobs, good salary. According to you, if I'm going to write this statement, how many bans I will get? How One many to of you six. write statement Five. like this? 5.5. Five, ma'am. It will be 5 months. Exactly. It will be around 5. देखो सारे evaluators बन गए. Right? तो आपको पता होना चाहिए. This is very important. I really want all of you to do a self evaluation. जब हम ऐसे सेंटेंस लिखेंगे तो हमारा बैंड क्या आएगा? सिर्फ 5 आएगा. हम 6 भी नहीं अचीव कर पाएंगे, 7 तो बहुत दूर. सो इफ यू रियली वांट टू अचीव दैट बैंड 7, और मैं आपको बोलूं कि इस सेंटेंस को आप चेंज करो इन टर्म्स ऑफ vocab, हाउ विल यू डू इट? एनी एग्जाम्पल? Numerous individuals need excellent job opportunities and with extraordinary salary line. First plan your sentence, Kushal, because जब आप speaking, देखो, Okay. whenever you speak, I don't want you to take pauses. क्योंकि जब भी आप आंसर दोगे, बोलोगे, I'm gonna evaluate your speaking skills also. Okay. ठीक है? Yes. So इसलिए प्लीज पहले प्लान करो, then speak. Anyone? People want good jobs, good salary. बहुत बेसिक सेंटेंस है. Ma'am, masses want good job with good incentives. Who wants? Instead of people, we can use the individual of masses. Why masses? मुझे ये बताओ. आप पीपल को पीपल भी रख सकते हो. आप लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स बीच में ऐड करते हो. आपको एक ही ऐसे लिखना है. अगर आपने पीपल को पीपल भी रखा है तब भी एग्जामिनर आपको कोई 5 बैंड नहीं देगा. ठीक है? Okay, ma'am. We can have like Yes. people want to have good job with high salary. People want to have what? People want to have good jobs with high salary. Good jobs with high salary. तो इसमें आपने क्या करा? People want to have लिख दिया, बस to have ऐड कर दिया. तो इसमें आपने यहाँ पर कहीं पे भी अपनी vocab को कहाँ ऐड करा? और हाई सैलरी, यू जस्ट एडेड गुड की जगह आपने हाई कॉलोकेशन लगा दिया बस. डू यू थिंक दैट स्टेटमेंट विल गिव यू band 7? जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर गुड सैलरी है, व्हाट एल्स यू कैन टॉक अबाउट गुड सैलरी? कोई और कॉलोकेटेड वर्ड सोचो. High package. अपार्ट फ्रॉम इट. Better salary, monthly income, High paid salary. high Some salary. incentives, सॉरी. high incentives. High paid salary. individual want good jobs with high फ्रेम Ma'am, योर होल सेंटेंस. opportunity. People अभी किसी ने prefer इंसेंटिव बोला था, वो किसने बोला था? सॉरी, आई मिस्ड आउट द नेम. people prefer बोल सकते हैं मैं people Who prefer said good incentives? Shehnaz. शहनाज बताओ इंसेंटिव्स क्या होते हैं और सैलरी क्या होती है? यस शहनाज. Incentives are like the rewards, the benefits. Okay, ma'am. It's not your salary. ठीक है? तो दिस इज व्हाट, जब आपने सैलरी को चेंज करके क्या कर दिया? इंसेंटिव कर दिया. सो अगर गुड जॉब्स है, सपोज आई डू नॉट वांट टू चेंज दिस, पीपल वांट, इंडिविजुअल्स वांट कर दिया आपने, मेनी इंडिविजुअल्स कर दिया. गुड जॉब्स को क्या बोल सकते हैं हम? थिंक अबाउट इट. valuable jobs, वैल्यूएबल जॉब्स employment, और वेल पेड जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स. prefer बोल सकते हैं prefer Jobs it about your career growth, your career prospects, competitive salaries, competitive. attractive salaries.
क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ही बेसिक कॉमन वर्ड का यूज किया, और मैंने आपको क्या बोला है, आप लेस कॉमन वर्ड्स का यूज करो. सो वी विल, एज आई टोल्ड यू, हम लॉट ऑफ, वेरी और ये बार बार गुड बैड ये वाले वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, बिकॉज वी रियली वांट टू स्कोर बैंड 7 एंड अबव. तो जब जॉब्स की बात हो रही है, कैन आई से हाई पेइंग जॉब्स? Many individuals, they prefer, they want high paying jobs, or they want to secure high paying jobs. वो पैराफ्रेजिंग तो इट्स इन योर हैंड, आप जैसे भी करो. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट vocab अभी, कि अगर मुझे दो वर्ड्स को चेंज करना है, जॉब्स एंड सैलरी, हाउ विल आई डू इट? मैं जॉब्स को वेल पेड जॉब्स बोलूं, सैलरीज को कॉम्पिटिटिव सैलरीज बोलूं, मैम अट्रैक्टिव बेटर सैलरीज ऑक्यूपेशन बोलूं? बोल सकते हैं? सॉरी, बेटर ऑक्यूपेशन. बेटर ऑक्यूपेशन. अब आप एक बात बताओ, ऑक्यूपेशन क्या होता है? प्रोफेशन. कहाँ गया स्टूडेंट? यस. आप लोग डर क्यों जाते हो जब मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो? मैम प्रोफेशन का होता है. रिमेम्बर दिस थिंग, जॉब का मतलब एक स्पेसिफिक काम जो आप करते हो. ऑक्यूपेशन इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म. तो आप ये जो ऑक्यूपेशन यूज करना चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ जॉब यूज कर रहे हो या सैलरी? पहले तो ये क्लियर करो, एटलीस्ट अपना डाउट तो क्लियर करो. ओके, बाय. यस, remember this thing. Muhammad sir, mute yourself. So remember this thing, कि जो वर्ड होता है ना, ये ऑक्यूपेशन, इट इज मोर फॉर्मल, और ये फॉर्म्स, इंटरव्यूज, ऐसी जगह पे हम याद इसको यूज करें, इट्स बेटर. ओके, नाउ टेल मी समथिंग अबाउट गुड. अब मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ पर गुड का सिनोनिम बेनिफिशियल यूज कर सकती हूँ? No. Yes, ma'am. Instead of that, we can use excellent. Can I use beneficial here? Yes, ma'am. Beneficial jobs, beneficial salary. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. People want beneficial jobs and beneficial salaries. क्या ये करेक्ट होगा? No, नहीं मैम, ma'am. फिर वो No, सेम चीज हो ma'am. जाएंगे. No, ma'am. It would be exactly the same, like good job, good salary. No, it will change the meaning of the statement. Beneficial jobs and ideal salary. क्या मैं एक जगह पे यूज कर सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes, Yes, yes. ma'am. Yes, एक जगह पे beneficial कर सकती salary. हूँ मैं बेनिफिशियल का यूज? नो, आई कैन नॉट. जॉब्स के लिए बेनिफिशियल यहाँ पे यूज करना, इट विल नॉट बी अ नेचुरल वे. पीपल वांट बेनिफिशियल जॉब्स. बेनिफिशियल जो ये एडजेक्टिव है, ये कहाँ यूज किया जाता है? उन चीजों के लिए जो हमें बहुत ही हेल्पफुल हो लर्निंग के पार्ट में. सिचुएशन, नॉट फॉर जॉब्स और सैलरी. प्लीज फोकस. क्यों मैं ये छोटी चीजें करा रही हूँ? बिकॉज इट इज नॉट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. अगर आपसे मैं गुड का सिनोनिम पूछूं तो मुझे वो आंसर में मिलेगा, इट्स बेनिफिशियल. बट बेनिफिशियल जॉब्स या बेनिफिशियल सैलरी, इट्स नॉट करेक्ट. रिवॉर्डिंग जॉब्स आप कह सकते हो, स्टेबल जॉब्स आप बोल सकते हो, वेल पेड जॉब्स आप कह सकते हो, कॉम्पिटिटिव सैलरीज बोल सकते हो, रिवॉर्डिंग करियर बोल सकते हो. बट बेनिफिशियल सैलरी या बेनिफिशियल जॉब, इट्स नॉट द राइट कॉन्टेक्स्ट टू यूज इट. सो इसीलिए जब आपने बिग के मुझे इतने सारे सिनोनिम बताए, इट्स नॉट कि कहीं पर भी अगर बिग लिखा है तो आप वो सारे यूज कर सकते हो. यू शुड नो कि लेक्सिकल रिसोर्स के लिए हमें राइट कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए. नाउ आई एम गोना गिव यू अ स्टेटमेंट. यू हैव टू जस्ट
Replace the basic words and just do a vocab upgrade to it. Ma'am, significant number of people believe that TV is harmful. TV is Harmful. harmful. Correct. TV Yes, is ma'am. bad, it's harmful. Or instead of TV, television. Yes, television also. Correct. अब आपने harmful बोला, it's harmful to society भी बोल सकते हो आप. Right? Yes. Anybody else? Because यहाँ पे आपके पास change करने के लिए क्या है? अगर आपको many people को many people रखना है, आप many people को many people रखो. There's no problem. आपको large number of people बोलना है, आप large number of people बोलो. आपको many individuals बोलना है, just plan it. Day 1 से ये चीज start करो कि आपको सिर्फ एक ऐसे लिखना है. अगर आपकी statement आती है question में about many people, some people, just remember कि जब मैं ऐसे अपना start करूंगा, how I can phrase it. मैं many people को large number of people लिखूंगा या मैं many individuals लिखूंगा. आप think है, think को आप क्या लिख सकते हो? You can talk about believe, you can talk about consider, you can talk about argue. They think TV is bad, television is harmful to society. और क्या कह सकते हैं? Yes? Detrimental effects. Detrimental. Yes. Adverse Many effect. people believe television has a negative impact. Has negative effects. Correct. Television is detrimental for society. I got an answer from Vanita. A majority of individuals opine that television is harmful. Yes. That's correct. Many people believe television has a negative impact on society. आपको अपने sentence को extend करना है. You can extend your idea. But our main focus is how we are upgrading the vocab. It should be in the right context. Wrong नहीं होना चाहिए. अगर आपने wrong context में use करा, आपके उस fancy word को add करने का कोई फायदा नहीं. Okay? It's possible to say many people argue TV is not recommended. Is not recommended. You cannot use not recommended because bad. It's written here, it's bad. You can say it's harmful form of entertainment. Okay? Ma'am, can we use like Yes, somebody is speaking. I want to ask like many people believe that TV is just a waste of time. Can we write this? Television is just a waste of time. देखो जब हम deviate हो जाते हैं ना अपने idea से, when they say bad, try to use only a synonym for that. Okay, ma'am. Okay, यहाँ पे अगर हम बोले not recommended है, so again we are actually deviating from the topic. Okay. ठीक है? We can use ineffective. Sorry, what में हम? Ineffective word use कर सकते हैं bad की जगह. Sorry, which effective? What collocations are you using? Effective और ineffective. Ineffective कैसे होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स तो पता है. Okay, ma'am. हाँ. चलो, now I'm gonna give you another one. You have to use again. Many people like fast food. Focus on vocab. बहुत basic. Many individuals prefer junk food. Many individuals prefer junk food. और many people a lot of people use कर सकते हैं.
मैंने आपको बोला यस आप कर सकते हो, a lot of individuals, it's Many correct. individuals, Hmm. many individuals prefer processed meals, processed food. Yes, processed food is also a right collocated word for fast food. Yes. Lots Processed of food people or want to processed eat food, ma'am? fast Sorry? food. Processed food or processed food? Processed food. Okay, okay. Many Processed people food. many people enjoy fast food because Many people enjoy. fast food. अब आपने सिर्फ लाइक को एंजॉय कर दिया बस. Ma'am, can Not we for write many everybody. people love to eat fast food? Ma'am, आपने लाइक को like लव टू ईट कर दिया बस. many people. In As these a days, most of My young focus is here. My focus is not about many people. वो तो आप सब कुछ ना कुछ लिख लोगे. What about liking fast food? How ma'am, can you like change the it? fond अब of आपके पास eating. अगर एक But fast ऐसे food आया, is उस street ऐसे का टॉपिक फास्ट फूड पे हो, ओनली दिस street मच food. स्टेटमेंट, क्या आप पूरे ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हर लाइन में फास्ट फूड लिखते जाओगे? Processed food, not food. यस, प्रोसेस फूड लिख सकते हो. और क्या लिख सकते हो? Ma'am, Street food. fond of the use Junk करते food. हैं. जंक फूड मैम. मैम स्ट्रीट फूड हो गया, Junk Street food, जंक food. फूड हो bad गया, food. Can I say low nutrient food? Instant food. Yes, ma'am. Yes. Just Unhealthy think food. beyond it. Yes, हमें बेसिक पे नहीं जाना. जंक फूड तो सबको पता है. वो तो हम सब रेगुलर डे टू डे लाइफ में फास्ट फूड को जंक फूड ही बोलते हैं. उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? हाईली Ma'am, quick प्रोसेस्ड meal. Low hygienic, low hygienic. यस. Who Quick said easy ma'am. to eat food, Unhealthy food. unhealthy food? Ma'am, instead of like, can we use attract? No, not Quick attract. meal. Convenience Many food. people attract fast food. आपने तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर दिया. Ma'am, convenience food. कन्वीनियंस फूड भी लिख सकते हैं. यस, दैट्स करेक्ट. Ma'am, fond of का यूज कर सकते हैं. पैकेज्ड फूड. यस, वो तो आप लाइक को रिप्लेस कर रहे हो ना फॉन्ड ऑफ लिख के. Yes, ma'am. बट प्लीज ये जो अगर आप फॉन्ड ऑफ भी लिखते हो, अगेन यू आर ऑन 6, ट्राई टू फ्रेम योर सेंटेंसेस फॉर बैंड 7. अब इससे अपने सेंटेंस को रिक्रिएट करो. ये तीनों वोकैब लिखिए, एनी ऑफ योर चॉइस. ट्राई टू डू. कल हमने क्या करा था? हमने उससे पहले टास्क रिस्पॉन्स करा था और कल हमने कोहेरेंस एंड कोहेजन करा था. कैन यू जस्ट क्रिएट अ न्यू सेंटेंस विद दिस? Many people like fast food. Any example? Although many individuals prefer to eat convenience food, it causes adverse effects. Or it causes negative effect. It causes adverse effect. Yes. Although many people like or consume processed food, it causes adverse effect. So that's what a complex sentence is. Anyone? Okay, no complex sentence. Any sentence from your choice. बस उसमें क्या करना है आपको? vocab को upgrade करना. Many people have a strong preference for quick service meals. Many people have a strong preference on For quick service meals. quick service meal. Yes. क्विक मील्स भी एक सिनोनिम होता है फास्ट फूड का. राइट? इवन क्विक सर्विस को आप टाइम सेविंग मील भी बोल सकते हो. रिमेंबर प्लीज, ये याद रखने, ये बेसिक वोकैब है अगर आपके पास कभी भी ऐसा वर्ड आता है. नाउ नेक्स्ट वन, एक और सेंटेंस. बिग सिटीज हैव मेनी प्रॉब्लम्स. Big cities have many problems. How will you add?
Metropolitan issues. cities have major issues. Yes. Now start just doing the vocab upgrade in chunks. Think about big cities. Big cities क्या Developed होती है? cities बोल सकते हैं मैम. One by one, please. एक एक करके. Well developed Urban cities. centers, Yes, developed cities. Exactly, developed cities बोल सकते हैं. और urban Urban cities. urban cities बोल सकते हैं. Correct. metropolitan Urban cities, centers. Major Metropolitan cities. बोल सकते हैं. Major cities बोल सकते हैं. Yes. और Urban centers. urban centers, urban areas, urban cities, they are all same. Tier 1. तो अब आपको समझ आया कि बिग सिटीज के लिए आप क्या चेंज कर सकते हो. Ma'am, can we use a modern Modern here? cities, yes, we can talk about modern cities, have many problems. अब इसे आप कैसे चेंज करोगे? Have many problems. Think about first many problems बोला है. Many problems को क्या कर सकते हैं? Major issues, number of issues, numerous problems. Numerous numerous problems. problems. Problems को भी change करो. ma'am, challenges, Numerous challenges. Multiple difficulties. So can I Complications. write here? Now you only told me metropolitan cities. Numerous challenges. Can I write metropolitan cities face numerous challenges? Yes. ma'am. Yes. Can I say large urban areas experience a variety of issues? Problems का challenges भी होता है, issues भी होता है. Yes, ma'am. अब suppose करो, यहाँ पे लिखा था many problems. Can I say major cities they encounter social and environmental problems? Now I'm just expanding my idea. Many problems ना लिख के मैंने वो problems mention कर दी यहाँ पर. This is how you Yes, ma'am. expand your idea. Even many problems को I can write multiple difficulties also. Yes, ma'am. Yes, ma'am. One other way to write the same statement, mega cities they suffer from problems. अब वो problems क्या है? वहां पे मैंने लिखा social and environmental. Now here I am writing congestion and pollution. So I'm adding an idea to it. Yes, So ma'am. remember vocabulary. Now you have to write these type of sentences, not this one. Students, I have observed that they write only this type of statement. ऐसा नहीं करना. This is the basic version to teach you कि vocab upgrade कैसे होती है. आपको ये करना है to band 7 and above. Remember this. अब इसी को हम और एक्सपैंड करते हैं. जो हमने ये पहली स्टेटमेंट लिखी है, metropolitan cities face numerous challenges. Now I will write here. Major metropolitan cities face numerous challenges, including कौन कौन सी? अब congestion है, pollution है. प्लीज ममता म्यूट करके बात किया करो. ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन, ओवरक्राउडिंग. मैंने वो challenges भी ऐड कर दिए. So do you like this statement now or was it fine this much? Yes. कौन सा Yes, now statement you अच्छा can लग give रहा है? 7 lemon on this. Exactly. Last That is one. what you need to prepare yourself. तो हम अपने स्टेटमेंट्स को यहाँ तो बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ रखेंगे तो हम इसी पे रहेंगे. अगर हम यहाँ रखेंगे then we can score this much. Okay, ma'am. So just at home you need to practice this. ये एक दिन में नहीं आएगी, I can tell you. But जब तक राइटिंग के सेशंस, द राइटिंग का पूरा मॉड्यूल ओवर होगा, तब तक ये बहुत अच्छे से आ जाएगी.
So remember, कभी भी फास्ट फूड आए, just think about these statements. जंक फूड तो कोई भी बोल लेता है, please do not talk about it. लो न्यूट्रिएंट फूड बोलो, प्रोसेस्ड फूड बोलो, कन्वीनियंस फूड बोलो. बिग सिटीज है, लार्ज अर्बन एरियाज बोलो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलो, मेजर सिटीज बोलो, मेगा सिटीज बोलो, एंड देन एक्सपैंड योर आइडिया लिटिल बिट. दिस इज व्हाट, अगर आप ऐसे स्टेटमेंट अपने ऐसे में लिख के आते हो, आई कैन बेट यू कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो आपको 7 ना दे. फोर्सफुली he needs to give you, because आपने स्टेटमेंट्स ही ऐसे लिखे हैं सारे, राइट? तो हमारा टारगेट क्या है? these type of sentences or this. now you all have to promise me कि कौन ऐसे sentences अब लिखना स्टार्ट कर देगा from today onwards. Me, ma'am. yes, definitely you have to. चलो नेक्स्ट करते हैं जल्दी से. सोशल मीडिया इज बैड फॉर चिल्ड्रन. सोशल मीडिया इज बैड फॉर चिल्ड्रन. Social media addiction is not good for children's. फिर आपने नॉट गुड लगा दिया. हम नॉट गुड से बहुत लेवल हाई चल रहे हैं, हम नॉट गुड क्यों लिखेंगे? Social नॉट गुड, नॉट networking बैड, वेरी. platform. अपनी डिक्शनरी में जो ये आपके वर्ड्स है ना, नॉट गुड, नॉट बैड, वेरी, ये सारे वर्ड्स को हटा दो. Ma'am, Social Media networking is harmful for platforms are children due to its harmful for detrimental children. effects on eyesight and the concentration. It causes Ma'am, social media is detrimental for the children, including effect on the Social media eyesight, is detrimental for the children. detrimental impact on the children health. सोशल मीडिया, दोबारा से बोलो. सोशल मीडिया के बाद आपने क्या बोला है? इज, हैव, क्या बोला है? Ma'am, social media have a detrimental impact on the overall health of the children, including eyesight, हाँ, वो physical, आइडिया mental. एक्सपेंशन बाद में करेंगे, लेवल 2 पे बाद में जाएंगे. अभी सिर्फ वोकैब अपग्रेड करके Okay, बताओ. ma'am. Social media have detrimental impact on a holistic development of the children. यस, करेक्ट. यस, Social media can be detrimental to children. अनम बोलते बोलते आवाज कहाँ चली जाती है? Social media can be detrimental to children. कैन बी डेट्रीमेंटल्स टू चिल्ड्रंस. Able चिल्ड्रंस होता है या चिल्ड्रन होता है? Children. so social media can be damaging for children. कैन बी डैमेजिंग. Can be damaging for children. Carol, you need to please mute yourself. Ma'am, excessive use of social media is unhealthy for minors. Is unhealthy for minors. Yes. Unhealthy क्यों यूज करना? आप हार्मफुल यूज कर लो, एडवर्स इफेक्ट यूज कर लो, डेट्रीमेंटल कर लो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर लो, नेगेटिव इम्पैक्ट कर लो. स्टार्ट ब्रेकिंग इन चंक्स. सोशल मीडिया को क्या लिख सकते हैं अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया? Digital social media, social networking media, platforms. virtual media, Advancement of जब technology आप would चंक्स में डिवाइड online करोगे अपने platform. सेंटेंस को, इट विल बी Entertainment. मोर इजियर फॉर यू. सिनोनिम्स सोचो कि सोशल मीडिया है, क्या कोलोकेशन लगा सकता हूं. आपके पास पता है एक चीज क्या है? देखो, आपको ये वर्ड चेंज नहीं करना. सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बोलो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स बोलो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बोलो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बोलो, नेटवर्किंग एप्स बोलो, Entertainment platform. it does not only include entertainment platforms. आप उसके सब Online वर्जन में आ गए. community. Social media means the all virtual interaction platforms, online social interaction tools, digital communication platforms, internet based networking services. तो simply is bad बोला.
अब बैड किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए. टॉक अबाउट चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, पहले ये सोचो. Adolescents, minor. Students. Ma'am, youth. Younger generation, yes. Minors. Youngsters. New generation. Minors बोलो. Younger generation, ma'am. Yes. Young individuals बोल सकते हो. Adolescence. It's up to you. Ma'am, teenagers. Ma'am, teenager. Peers. Ma'am, what about minor? Yes, minor also. New generation. Ma'am, teenager also. Jubilean, ma'am. देखो वैसे ना Gen Z. चिल्ड्रंस, एक चीज याद रखो. आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट. यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन दिया. व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन इज यूज्ड फॉर व्हिच एज ग्रुप? Below 18. Adolescents. 5 to 8 years. Below 15. No. We have children age group till Below 13. 12. Then we have the teenagers. Teenagers is 13 to 19. Usually children is from 2 to 12, क्योंकि 2 से जो छोटे हैं they are all toddlers. Then infants आ जाते हैं. Gen Z का वर्ड यूज कर सकते हैं? Yes Anam. Gen Z. प्लीज क्यों ऐसे वर्ड्स को यूज करना? आपको सिंपल वोकैब यूज करने में कोई प्रॉब्लम है? जेनजीज, आप राइटिंग कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो? So what I am talking about is children. Children age group, it's till 12. उसके बाद हम teenagers की बात करते हैं. Teenagers, adolescents, they are same, 13 to 19. Youngsters it's mainly a broader group जिसमें हम teenagers को भी include कर देते हैं. So it depends. अगर children बोला है तो आप क्या use करोगे? That means they are not talking about youngsters. Young age group की बात नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पर सोशल मीडिया इज बैड फॉर चिल्ड्रन बात हो रही है ना? तो थोड़ा सा हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे. यस सरबजीत. Yeah, I'm also facing the same thing. Correct. Yeah, because yeah. Yes. Okay, no problem. Thank So, you. अच्छा, अब now give me one statement and then you need to expand it. Juvenile का ये बहुत ही फॉर्मल आइल्स वोकैबुलरी है, इसको यूज करना. आप चिल्ड्रन में कोलोकेटेड वर्ड लगा दो, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस. ठीक है? ओके. यस. ओके, नाउ चलो अब ये करते हैं. ये बताओ वन बाय वन, सब लोग साथ में नहीं बोलेंगे प्लीज. स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस. वन बाय वन स्टूडेंट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? स्टूडेंट. यस. वन बाय वन लर्नर्स हो गया. यस. और yes Pupils, school goings. yes. Undergraduate. Scholar. Sorry. Scholar. Scholars. Yes. और Undergraduate. undergraduate is Dependent. basically university students. तो वो हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में चले गए अगर हम अंडर ग्रेजुएट्स की बात करें. सो इट्स मोनली द अंडर ग्रेजुएट. क्या होता है? इट्स द बैचलर डिग्री, राइट? Now have a lot of stress. Lot of stress. More Numerous challenges. pressure. High level of stress. High level of stress. एक collocated word. Yes. और देखो जब आपको ना, अब ये स्ट्रेस के साथ एक वर्ड्स ऑलरेडी लिखे हैं, लॉट ऑफ. कॉलोकेशंस पे वर्क करना स्टार्ट करो. स्ट्रेस है एक्सट्रीम स्ट्रेस,
significant stress, considerable stress, Yes, ma'am. high level of stress, immense pressure, mental strain. Just Heavy pressure. think about it कि हम कौन सा collocated words यहाँ पर add कर सकते हैं, उसके बाद इसे expand करो. ठीक है? Yes. मेंटल प्रेशर भी बोल सकते हैं ना. बोल सकते हैं. Yes. Heavy pressure. Anxiety. Students have. Yes, please. Stress is not anxiety. Who said anxiety? What about burden? Who said anxiety? Me, ma'am, Hardeep. हाँ, तो अभी किसी ने explain भी करा. Do you think stress and anxiety are same? They are not exactly the same. Stress आपको किसी भी वजह से हो सकता है. It can be about any pressure, any challenges, any issues you are having. But anxiety एक ऐसी feeling है when you get feared of, when you get nervous without any reason. जो आपका ongoing worries or fear चलते रहते हैं ना, वो होता है. Stress is basically a pressure from a situation. Okay, ma'am. जिस तरह IELTS एग्जाम एक एंजाइटी होती है. It's not an anxiety. बिल्कुल भी नहीं है. जिस तरीके से आप पढ़ोगे, it's up to you. Okay? Yes. तो जल्दी से बताओ. अब मैं learners लिख दूं यहाँ पर. I choose this word learners. Have a lot of stress. Can I say they experience a क्या लिखें बताओ. मैम स्टूडेंट्स मींस पॉजिटिव नहीं रहते, ज्यादा नेगेटिव रहते हैं, दैट्स व्हाई. सॉरी. यस जगतार, क्या रहते हैं डियर? सॉरी मैम जैसे स्टूडेंट्स पॉजिटिव नहीं सोचते, लाइक नेगेटिव रहते हैं, इसीलिए. Ma'am, यस कुशल. scholars face excessive stress. Yes. Scholars, they experience, they face, they suffer from mental strain also. हम यहाँ And पर इसको chronic चेंज diseases. करके मेंटल स्ट्रेन भी कर सकते हैं. Ma'am, learners have Ma'am, extreme learners pass through various kind under of pressures. considerable pressure भी बोल सकते हैं. Ma'am, learners have extremely pressure due to numerous हाँ, academic फिर वो studies. रीजन ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ड्यू टू आएगा और हम रीजन को ऐड करेंगे. अब अगर हमें यहाँ पर कुछ रीजन नहीं दिया, हमें ऐड करना है, तो आप वो रीजन ऐड करो. यस, दैट्स गुड. आप एक्सपैंड कर सकते हो अपने आइडिया को. रिमेंबर दिस थिंग. It causes due to social comparisons or social discrimination. Yes. Learners And Next it one. leads to more chronic disorders. Yes. Now next one. Many people move abroad for better life. Majority of people migrate to foreign countries. साक्षी, आपने जो लिखा है learner face a lot of school homework pressure. आपने यहाँ पर ना रीजन ऐड कर दिया है कि जो प्रेशर है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ स्कूल होमवर्क, जबकि हमारा जो स्टेटमेंट है अभी वहां पर इट्स नॉट क्लियर. ओके. यस सरजीत. Majority of people migrate to foreign countries for better life. Because Sarjeet is in Canada. She knows well. Many individuals move. Sorry, wait. Yes, so move abroad को अरे बहुत सिंपल है. जितने कैनेडियन Foreign जिनको country. कनाडा जाना है तो सब कर लेंगे. हाँ. Foreign country. Move abroad for better life. A move abroad. Settle Relocate. abroad, ma'am. Yes, settle, move overseas, Go overseas. relocate,
For better opportunities instead of For life. better opportunities, for better quality of life, for improved living standards. For better lifestyle. Yes. मैम better salaries. हाँ, आप एक पॉइंट पे ले आए, सिर्फ सैलरीज के लिए जाना है, यहाँ पूरी लाइफ की बात नहीं। सिक्योर्ड लाइफ भी बोल सकते हैं मैम। Yes, secured For life. better life opportunities. Yes. To lead a more prosperous life, career opportunities. For a brighter future. Yes, for a brighter future also. ये तो सबको आता है यार, इसको तो कराने की नीड ही नहीं है, सबको जाना है। Ma'am, we can use migrate, ma'am. हाँ, migrate. Yes, you can use migrate. Migrate तो आप यूज कर सकते हो ना। Yes, ma'am. But क्योंकि माइग्रेट का मतलब ही क्या होता है कुशल? माइग्रेट मीनिंग्स व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। yes, ma'am. Either it is for living, work, or finding the better opportunities. So simply जब move आए, you can use migrate, you can use relocate also. अब देखो, अगर आपने यहाँ पर सपोज यूज करा migrate, work on collocations, आपने सोचा मैं migrate लिखूं, अब वो migrate के साथ आप overseas ऐड करो क्योंकि abroad है, yes. राइट? कॉलोकेशंस पे वर्क करोगे तो आपके लिए वोकैब ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा। बेटर लाइफ है, आप उसे क्या बोल सकते हो? बेटर लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपने सिर्फ और सिर्फ लाइफ के साथ क्या ऐड करा है? कॉलोकेशंस। बेटर लिविंग कंडीशंस, प्रॉस्पेरस लाइफ। यस सरजीत। Higher standard of. Yes. Enhance living standard. Yes. To enhance their living standards or for improved living standards. Okay. So collocations जितनी अच्छे से आएंगी उतना जल्दी आप लेक्सिकल रिसोर्स में प्रो हो जाओगे। बट collocations पे वर्क करो। अब मुझे जल्दी से ये करके बताओ। नाउ इट्स लिटिल बिट a big sentence. Many people think online learning is good because it is easy. क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल, it is good, it is easy. Numerous individuals believe that online learning platforms are better because it is more convenient or comfortable. गुड। और क्या कह सकते हैं? अब मैं यहाँ पे गुड के लिए वर्चुअल लर्निंग कर सकते प्लेटफॉर्म। हैं। सबसे पहले देखो, ये हमें सोचने की नीड ही नहीं है, हमें पता है इसका हमें क्या करना है। मैनी इंडिविजुअल्स लिखो, मैनी पीपल लिखो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिखो, थिंक है उसे आप बिलीव करो, प्रेफर करो, कंसिडर करो, एनी ऑफ योर चॉइस। बात आती है यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग है। ऑनलाइन लर्निंग को क्या लिख सकते हो? डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। यस, आपको ये सोशल मीडिया, ठीक है? तो आप ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही है तो आप ई लर्निंग बोलो, डिजिटल लर्निंग। अब फिर से कॉलोकेशंस, ऑनलाइन लर्निंग है। अब मुझे अगर कॉलोकेशन चेंज करना है, मैं ई लर्निंग बोल दूं, डिजिटल लर्निंग बोल दूं, वर्चुअल लर्निंग बोल दूं, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग बोलूं, वेब बेस्ड एजुकेशन बोलूं। अब और चेंज करना है, अगर मैंने वर्चुअल बोला, मैं वर्चुअल लर्निंग की जगह वर्चुअल एजुकेशन बोल दूं, रिमोट लर्निंग बोलूं। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए मुझे कौन सा ऐसा सिनोनिम ढूंढना पड़े, क्योंकि आप कॉलोकेशन। मैम, ये डिस्टेंस लर्निंग भी बोल सकते हैं। दैट इज व्हाट आई सेड। यस, डिस्टेंस लर्निंग आप बोल सकते हैं, इज गुड। अब यहाँ पर आप क्या चेंज करोगे? गुड। सॉरी, डेट्रीमेंटल का वर्ड यूज इज बेनिफिशियल। डेट्रीमेंटल का मीनिंग भी नहीं पता अनम आपको? तो डेट्रीमेंटल क्या होता है? प्लीज कोई एक्सप्लेन करो, व्हाट इज डेट्रीमेंटल? नेगेटिव, हार्मफुल और बैड, which have negative impact. डेट्रीमेंटल का मतलब गुड होता है अनम? बेटर और बेस्ट। सॉरी, बेटर
डेट्रीमेंटल का मतलब हार्मफुल होता है। डैमेजिंग, नेगेटिव इम्पैक्ट। यस, कोई चीज जो हमारे लिए हार्मफुल है वहां हम डेट्रीमेंटल यूज करते हैं। यस मैम। तो अगर हमें डेट्रीमेंटल नहीं बोलना, कोई चीज हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, अच्छी है, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? beneficial, बेनिफिशियल, effective, एडवांटेजियस, पॉजिटिव, बेनिफिट, फेवरेबल, राइट। अगर डेट्रीमेंटल का मतलब नेगेटिव इफेक्ट है तो हमें पॉजिटिव वाली चीजें ढूंढनी है। तो ऑनलाइन लर्निंग इज beneficial, it is useful, it is effective, it is helpful, it is valuable, it is valuable. नाउ सपोज अगर मैंने यहां पर सिर्फ आपके लिए एक वर्ड लिखा बेनिफिशियल, जो आपने मुझे बोला, अब मैं इसके आगे क्या कोलोकेटेड वर्ड लगाऊं? highly beneficial, एग्जैक्टली, आई कैन राइट हाईली बेनिफिशियल। सो आपको ऐसे वर्क करना है। अब सपोज मैंने एडवांटेजियस लिखा था, तो मैं उसके आगे भी क्या ऐड कर सकती हूँ? हाईली एडवांटेजियस, राइट। नाउ बिकॉज इट इज इजी, अब ये कनेक्टर है, बिकॉज वाला कनेक्टर है, रीजन वाला कनेक्टर है, इसकी जगह आप सिंस भी कर सकते हो, एज भी कर सकते हो, और अगर आप इसे चेंज नहीं भी करोगे देन इट्स रियली फाइन। एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहता कि आपने जो सेंटेंस लिखा है आप उसका 1 to 1 वर्ड वो कैप चेंज करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इट इज इजी को आप क्या लिख सकते हो? अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना है, बताओ। convenient, convenient, accessible, यस, accessible, इजी करना मतलब यस, एक्सेसिबल, कन्वीनियंट, flexible, flexible and convenient, helpful, yes. So I'm writing a vocab, आपने बोला convenient, I'm writing convenient. अब अगर मैं accessible बोलूं, accessible के साथ मैं कुछ और कोलोकेशन लगाना चाहूं, more accessible. easily accessible, Oh, okay. right? Convenient है, flexible and convenient भी आप बोल सकते हो, it's up to you. Okay, so how you need to upgrade your vocabulary is समझो. This is very important because we have to use the vocab in the right context. कुछ स्टूडेंट बड़े अजीब अजीब से फैंसी वर्ड्स डिक्शनरी में से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, मैम ये लगा दे हो जाएगा। अरे आपको क्यों लगाना, आप सिंपल कॉलोकेशंस पे वर्क करो ना, आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, 10 वर्ड्स ही नहीं लर्न करने पड़ेंगे। इजी है, इजी अवेलेबल बोल दो, गुड है, गुड का कन्वीनियंट बोल दो, right? So please work on this. Now I'm going to give you another statement. Yes, Jana. Do you want to say something? No, I thought my laptop got hanged, that's it. Okay, no problem. मैम। Yes. मैम जिस तरह हम एक ऐसे लिख रहे हैं उसमें गुड का लफ्ज 3 या 4 दफा यूज हुआ है, तो मैम हम उसमें कन्वीनियंट लिखेंगे, किसी जगह में गुड भी ऐड कर सकते हैं कि हर जगह कन्वीनियंट ही लिखेंगे? फिर इस तरह तो देखो, what I want you to tell is, सपोज आपको 4 जगह पे गुड लिखना है, पहले तो आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे कि वो स्टेटमेंट क्या है। गुड के बहुत सारे सिनोनिम होते हैं, ठीक है, बट वहां पर क्या आ सकता है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ट्राई नॉट टू यूज बेसिक वर्ड, यूज ही मत करो ना, गुड बैड ये वाले वर्ड्स को छोड़ो। क्यों यूज करें हम, जब हमारा टारगेट 7 है, अगर हमारा 6 हो डेफिनेटली आप यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर बहुत इजीली दे देगा, बट 7 पे आने के लिए इन वर्ड्स को रिप्लेस करो। नाउ प्लीज क्विकली डू दिस। मेनी पीपल यूज मोबाइल फोन्स टू मच।
टू मच, वेरी मच, आते हैं ना ऐसे स्टेटमेंट्स। ये सारे Many people. एग्जाम्पल्स जो मैं आपको करा रही हूं ना अभी, ये सारे उन एसेज में से ही लिए गए हैं जो स्टूडेंट्स ने लिखे होते हैं। यूज के साथ अगर कोई कॉलोकेशन लगाना हो, क्या लगाओगे? अगर मैं बोलूं यूज का यूज ही रहने दो, सिर्फ कॉलोकेशन ऐड करो। हैबिट कर सकते हैं। एक्सेसिव यूज। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, मैंने बोला कॉलोकेशन बताओ। Highly used. Yes, highly used. Many people they highly use mobile phones. अब too much है, too much को क्या करोगे? Excessively. Excessive. Massive. Many people use mobile phones, फिर excessively, क्योंकि 2 बार आप excessively का यूज नहीं कर सकते। हाईली अगर पहले यूज कर लिया तो बाद में क्या लिखोगे? Highly. ओवर यूज बोल सकते हो यूज के लिए। हाँ, yes ma'am. मोबाइल फोन्स Yes, की ma'am. जगह क्या यूज कर सकते हो? स्मार्टफोन्स, Smart devices, स्मार्ट डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस। यस Electronic device. यस। तो पहले सोचो कि क्या आएगा। अगर मैं इसे सिंपल, बिल्कुल सिंपल कुछ ना करूं, आई कैन राइट दिस, कोई चेंज ज्यादा नहीं करा, एंड आई एम जस्ट राइटिंग दिस। मेनी पीपल एक्सेसिवली यूज मोबाइल। तो इसका मतलब क्या है? टू मच की जगह एक्सेसिवली आ गया। अब और cell phone. can I say this? Smartphones. I'm just upgrading little bit, extending. Many people they spend an excessive amount of time on their mobile devices. Yes ma'am. So see the sentence variation. Examiner को variety of sentences चाहिए। अब अगर मुझे यहाँ पर रीजन भी ऐड करना है कि वो फोन में एक्चुअली करते क्या हैं, क्यों इतना बिजी रहते हैं, so I am adding a reason also. I am extending my idea. Many people are becoming excessively dependent on mobile phones for communication and entertainment. Clear? Yes, please. Clear, I really ma'am. want that yes from you, because vocabulary, Yes, remember this thing. Yes ma'am. Vocabulary is not about memorizing कोई 4000 5000 वर्ड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पर। It is just about avoiding the repetition, upgrading the common words, ऐसे वाले words, और आपको right context में यूज करना। ये जो छोटे छोटे चेंजेस है ना, ये आपको बैंड्स के बहुत बिग जंप पे ले जाते हैं। आप सबको इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज यू हैव बीन इन दिस लाइन, इंग्लिश पढ़ रहे हो बहुत टाइम से, फ्रॉम द स्कूल डेज। यू जस्ट नीड टू हैव दैट स्मार्ट वोकैबुलरी चॉइसेस। आपको वो चॉइस करना आना चाहिए कि आप कहां पर यूज कर सकते हो। डू नॉट यूज दीज थिंग्स, थिंग्स, लॉट, वेरी 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 वेरी। डबल वेरी लिखने से या एक बार वेरी लिखने से कुछ अलग नहीं हो जाता। सो ये 3-4 जो वर्ड्स है ना, वेरी, बिग, गुड, बैड, ये वाले वर्ड्स को रिमूव कर दो। हमें ये सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमें बैंड 7 पे जाना है, हम 6 के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। अगर हम 6 के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप क्लासेस बस अटेंड कर लो, तब भी आपका 6 आ जाएगा। बट अगर आपको 7 पे जाना है, यू नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। क्लियर? तो कल के सेशन में हम करेंगे ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी विल बी वेरी वास्ट आई बिलीव, क्योंकि इसके बाद आपकी पैराफ्रेजिंग स्टार्ट होने वाली है। सो प्लीज बी रेगुलर। मंडे से कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पैराफ्रेजिंग कराऊंगी, और पैराफ्रेजिंग में मैं एंटायर ग्रामर जो भी रिक्वायर्ड है फॉर राइटिंग वो कवर कराने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट जो स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट हैं, प्लीज समहाउ, अगर कोई आज प्रेजेंट नहीं था, प्लीज
गुरप्रीत, हाउ टू डेवलप आइडियाज? कभी अनम्यूट करके भी बोला करो प्लीज। इकरा, आपकी मेंबरशिप बाय नहीं हुई? No, ma'am. Tomorrow, yesterday I try, but I can't do. ओके, चलो आपकी हेल्प करते हैं। जल्दी Okay, से ma'am. फीडबैक दो। डिड यू लाइक टुडेस सेशन अबाउट लेक्सिकल रिसोर्स? Yes. Yes, Yes, I ma'am. really like. Ma'am. We will. मैम कौन बोल रहा है? यस नहीं आया, ओनली मैम आ गया। A lot, a lot. Yes, ma'am. It's really Yes, helpful. ma'am. Yes, ma'am. अब आपको ये पता चला कि बैंड डिस्क्रिप्टर्स क्या है? Yes, ma'am. डेफिनेटली, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि एग्जामिनर आपको इवैल्यूएट कैसे करने वाला है, क्या ऐसे में लिख कर आओगे? कुछ भी थोड़ी लिख के आ जाना है ना। वी नीड अ स्ट्रैटेजी जिसके अकॉर्डिंग हमें पूरा ऐसे लिखना है। अब हमें टास्क रिस्पॉन्स पता है क्या होता है, उसके बाद हमें कोहेरेंस एंड कोहेजन भी पता लगा कि हम आइडियाज को कैसे कनेक्ट करेंगे। देन हमें लेक्सिकल रिसोर्स पता लगा कि हम वोकैब को कैसे अपग्रेड करें। नाउ टुमारो इज ग्रामर रेंज, ग्रामर पे कैसे वर्क करना है, डिफरेंट सेंटेंस टाइप कैसे लिखने हैं, वो कल हम वर्क करेंगे। क्लियर? सो प्लीज कल की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, एंड मंडे ऑनवर्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं। यस ज्योति। मैम, आई वांट टू बुक अ टेस्ट फॉर स्पीकिंग। सो मैम, आप कब अवेलेबल होते हो? लाइक उसमें मुझे वो स्लॉट्स हैं, बट मैं चाहती हूँ आपके साथ अपना स्पीकिंग ज्योति करना। आपको कब देना है? मुझे डे और डेट बताओ। मैम 20th मई, वेडनेसडे। तो उसमें स्लॉट 3 और 3:30 का यू है। आर ओनली अवेलेबल ऑन 20th of May? नो मैम, एक्चुअली मैं कुछ काम रहता है, तो मेरा वेडनेसडे थोड़ा फ्री रहता है। आप बोलो तो मैं ज्योति, मैनेज कर सकती हूँ। 20th of May, ऐसा पॉसिबल है दैट यू कैन डू इट बिफोर 1 PM? आफ्टरनून से पहले बुक कर सकते हो कोई स्लॉट? हाँ मैम, कर सकती हूँ। Ma'am, So you can even just me give too. me I 1 want minute. to. Just give me 1 minute, कुशल। तो आप क्या करो ज्योति, मंडे इज 18th, देन 19th, आप राइट आफ्टर सेशन का बुक कर लेना। 10 o'clock का कर लेना। इट विल स्टार्ट बाय 10:15, 10:20। जैसी क्लास ओवर होगी यू कैन हैव योर टेस्ट। ओके, ठीक है? एनी डे ऑफ योर चॉइस। आई गेस 22nd of May आई एम नॉट अवेलेबल, आई विल बी ऑन ऑफ। उससे पहले आपको जो भी वर्किंग डे मिले, आप मॉर्निंग का कर लो। गुड। मॉर्निंग का आफ्टर 10 है ना ये क्लास का? यस, राइट आफ्टर द क्लास। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस कुशल, नाउ टेल मी व्हेन। Ma'am, even me too. I want to book on Monday, ma'am. Speaking module. Monday the date is 18th of May. 18th. Yes, ma'am. ठीक है कुशल, so you can book it for 10:30। मंडे का कर लो। सेम Yes, स्लॉट ma'am. तो नहीं होगा, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा अवेलेबल स्लॉट है, आप उस पर बुक कर देना। अगर But कुशल morning, right, ma'am? Are you fine with morning timing? Yes, ma'am. Even 10 or 10:30 also fine. Because abhi I'm not fully confirmed about my afternoon schedule. Maybe I'm not available for few days in afternoon, so I have no idea अगर कोई और आपका टेस्ट ले तो। If you really want with Okay, me, ma'am. then you can book the morning slots. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. 10:30 morning. can I book, ma'am? Yes, 10:30 you can. Okay, ma'am. Okay. Any day, Monday, Tuesday, it's your choice. If any changes will be there, no problem. I'm gonna reschedule it. One time आपका reschedule हो जाएगा if it's my choice. अगर आप available नहीं होते somehow, then it will be stand cancel. But still you get one chance. One chance आपको हमेशा मिलता है. Because sometimes the students, they do not drop their number. So how we gonna call them? I really want you to tell one thing. Please application में अपनी contact details डालो। सरजीत आपकी contact details नहीं थी। सो प्लीज एवरीवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालो जब आप स्पीकिंग का टेस्ट बुक करते हो, और अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, वी नीड टू कॉल यू। इफ सेकेंड टाइम ऑल्सो यू आर नॉट अवेलेबल, देन इट विल बी कैंसल्ड। ठीक है? बिकॉज वी कैन नॉट वेट ट्वाइस। सो रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज पुट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ईमेल आईडी पे नोबडी रिप्लाई क्विकली, बट कॉलिंग पे do you people reply, right?
नाउ प्लीज प्रैक्टिस स्पीकिंग की. कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है? यस, who all are practicing daily? Be true. myself. Yes, Yes, ma'am. please. Me. Good. Only 2-3 yes I'm Me getting. too. The Me rest too. people are not practicing on application. प्लीज स्पीकिंग पे जब आप प्रैक्टिस करते हो मुझे पता चलता है किसका 6 आ रहा है किसका 6.5. प्रैक्टिस करो एवरी डे. स्पीकिंग से ब्रेक नहीं लेना, बिकॉज वी आर इनटू राइटिंग. दैट डजंट मीन कि हम स्पीकिंग नहीं करेंगे. बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी फ्लुएंट इनफ टू स्पीक फॉर योर स्पीकिंग आंसर्स. एक्सक्यूज मी मैम. यस इकरा. इकरा, मैम आपकी जो जी पेमेंट जी नहीं हो पा रही है, प्लीज कोई भी अगर पाकिस्तान से है उसकी हेल्प लो कि कौन सा कार्ड्स उन्होंने अप्लाई करा है. ओके मैम. ठीक है, वो आपको ओके हेल्प कर पाएंगे रिगार्डिंग द ओके मैम. मोड ऑफ पेमेंट. मैम मैंने स्पीकिंग की थी उस पे स्पीकिंग जो मॉड्यूल है ना. एआई पे. यस. जी जी उस पे की थी, लेकिन वो ना बैंड शो नहीं करवाते. वो कहते हैं कि पहले बाय करो मेंबरशिप, उसके हाँ बाद तो हम इकरा, आपको. यस, आपको बैंक स्कोर तभी मिलेंगे जब आप मेंबरशिप बाय करो. ओके मैम. राइट, तब मैम आप हम ऐप मल्टीपल को टेस्ट बाय दे कर सकते सकते हैं? ऐप को बाय, बेबी बेबी कोड ऐप को बाय तो कर वही सकते तो हैं? करना है आपको. उसी की जी तो जी ओके मेंबरशिप बाय करनी है, उसी की पेमेंट ओके करोगे. आई डोंट नो अभी क्या अमाउंट चल रहा है, तो उसको आप ओके पे करोगे तो आपको मेंबरशिप ओके मिल मैम. जाएगी. आई गेस इट्स फॉर 1 ईयर. मेंबरशिप पूरे इंटायर ईयर के लिए है, तो आप उसमें Yes, जी मल्टीपल. ma'am. मैम 10 डेज के लिए है, और एक 1 मंथ के लिए, और दूसरी एक 1 ईयर के लिए. हाँ तो 1 ईयर वाली करो आप. ओके 1 मंथ की क्यों करनी, फिर से रिन्यू, फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी. 1 ईयर में आई गेस यू हैव सम डिस्काउंट्स ऑल्सो. कुछ कोड लगा के आपको डिस्काउंट भी मिलता है. ओके Yes, मैम. we get आई discount of Yes, ma'am. 50%. Only Yes, ma'am. 499 या तो Yes, ma'am. it's for a one very year. normal amount. 499 for the Today, whole year. People spend Yes, 10 ma'am. to 20,000 for only 2 months का course. today And only I they, bought it. yeah, and they do not even learn this thing in the classes. I have seen offline classes. ठीक है. सो प्लीज अगर किसी का एग्जाम भी नियर बाय है, आप बेबी कोड वीजा सर्विसेज को भी ट्राई कर सकते हो फॉर अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. न्यू स्टूडेंट, आज हमें किसी ने ज्वाइन करा था न्यू. आई मिस दैट नेम. हाँ देखो, मनीष ने कोड भी शेयर करा है. यू कैन यूज दिस कोड एंड यू विल हैव 50 रुपीज का डिस्काउंट. इकरा, सेव कर लो ये कोड. ठीक है. So please, new students, ओके click मैम. on the थैंक यू. remind me button for all of the next classes ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो. And 9 o'clock आपके पास reminder आएगा. You will be able to join that class. And tell this to your friends and family. They can also attend the live classes. They can also have the benefit. Okay? So see you tomorrow. Bye. Take care. Inshallah. Thank you. No Thank worries. you, ma'am. Bye.